Yeah. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayaryanam, Namo Uvajayanam, Namo Loe Savva Sahunam, Esa Panchanamakara, Savva Pavapanashanam, Mangalanam Cha Sarvesim, Paramam Havai Mangalam. Okay. So who wants to say the meaning of Annat Sutra? Saina, do you want to try? Please. Okay. Yeah, okay. So Anatta, 12 exceptions. So Usiyanam, breathing in, Nisiyanam, breathing out, Kasiyanam, coughing, Chiyanam, sneezing, Jambayanam, yawning, Ubhinam, retching, Vayanasiganam, laying out bodily gas, Bamalaye, dizziness, Pittamuchaya, fainting. Suhu Mehem, several body movements, Kales Muchalation, movement of fluids within body. Suhumem Ditti Sanchalehem, movement of eye. Four major exceptions. Eva Mahi Ehem, you see two organs killing each other. Two organisms killing each other. Aga Ehem, natural disaster. Abago, animal attacks you. Abiyahia, orders by higher authority. Till I do not do namaskar. No. That's yeah. Javarintam Bhagavantam Namakaranam Navami. Till I do not do namaskar to Arihant Bhagwan, I will not end my kasa. Apanam was Takanharnam Moyanam Janam Apanam Mosyami. That means Kaya Tyag, Vachan Tyag, and full Dhyam on sutras. Okay. Yeah, I think that is good. So the only thing जब जो चार major exceptions बोले ना, so those are the exceptions. But the thing is that during those exceptions, you can basically break the Kausar, can go to some other place, and you can restart the Kausar. Okay, so you can walk away from those places. So that is an exception. So you can move away from the place, and you can go to another place. Okay. So this class, let's start with Logas Sutra. So Logas Sutra is little difficult sutra to understand. Okay, so that's why I wanted you to listen to the Tirthankar class. The meaning is not that straightforward. Okay, so the meaning is there is a garbid meaning within the Logas Sutra. Okay, so Logasa Ujo Agare. Okay, so Logasa, what is the meaning of word Logasa? Does anyone know the meaning of word Logasa? Logasa means lok. Okay, Chaud Rajlok. Okay, okay, Chaud Rajlok is Logasa. और उज्जो अग्रे मतलब प्रकाशित करने वाला है. ओके, प्रकाशित मतलब एनलाइटर्स. ओके, सो लोगस उज्जो अग्रे मतलब समस्त 14 राजलोक को प्रकाशित करने वाले. Okay, so the first paragraph of Logas Sutra basically describes who the Tirthankar Bhagwan are. Okay, describes कि तीर्थंकर भगवान कौन है. तो उसमें तीर्थंकर भगवान के 4 अतिशय बोले हैं. Does anyone know the 4 atishayas of Tirthankar Paramatma? Omniscience, no calamities within 125 yojan, all heavenly and human beings bow down to them, and there's one more. I can't remember. Do you know the name of the 4 atishayas? I know one is Geognan. I don't know the names. I know what they are. Okay. Yeah, so you are you are right. So first is Gnan Atishay, second is Apayagaman Atishay, third is Vachna Atishay, and fourth is Puja Atishay. Okay, so
first paragraph of the Logos Sutra describes these 4 atishayas of Tirthankar Paramatma. तो पहला है लोगस उजोग्रे. लोगस उजोग्रे describes the ज्ञान अतिशय. Okay, so लोगस उजोग्रे मतलब 14 राजलोक को प्रकाशित करने वाले. So in order to understand the meaning of this, there are 2 meanings of this line. There is a Dravya Prakash and there is a Bhav Prakash. Okay, I know it might be a little difficult for Myra to understand, but I'll try to explain as simply as possible. Okay, so 2 type के प्रकाश होते हैं, एक द्रव्य प्रकाश है, एक भाव प्रकाश है. तो whenever there is a kalyanak of any Tirthankar Paramatma, do you know the 5 kalyanaks? Can anyone tell me the name of 5 kalyanaks? So there is There's Shravan, Chalan Kalyanak, Janma Kalyanak, Diksha Kalyanak, Gyan Kalyanak, and Nirvan Kalyanak. Right. So whenever there is this 5 kalyanaks of Tirthankar Paramatma, there is a prakash or there is a light in Samasta Chaud Rajlok. There is a physical light that goes in the Samasta Chaud Rajlok. Okay, there is a physical prakash, and that is known as Dravya Prakash. Okay, and all the जीव्स of the entire Chaud Rajlok वो एक सुख की अनुभूति करते हैं. They experience happiness whenever there is kalyanak. So even the जीव्स of Narki, all the 7 naraks, they experience the moment of happiness during this 5 kalyanaks. So that is known as Dravya Prakash. And second is Bhav Prakash. So what is Bhav Prakash? कि Bhav Prakash basically means केवल ज्ञान. Okay, जब तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान होता है, तब क्या होता है कि समस्त 14 राजलोक के समस्त पदार्थ, जितने भी पदार्थ है, right, there are six द्रव्य, right, right, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीव, पुद्गल और कार, right, there are 6 द्रव्यस. तो ये 6 द्रव्य का समस्त पदार्थ के समस्त पर्याय means all the avasthas, the change in forms is known as paryais. तो तीनों 3 काल मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों 3 काल का ज्ञान उत्पन्न होता है प्रति क्षण. सो एवरी क्षण, एवरी समय ये अनंत ज्ञान उनको उत्पन्न होता है, तो उसको बोलते हैं भाव प्रकाश. ओके, नाउ व्हाट तीर्थंकर परमात्मा डज इज विद दिस ज्ञान ही गिव्स दिस ज्ञान टू गंधर्व भगवंस. ओके, एंड गंधर्व भगवंस वो द्वादशांगी की रचना करते हैं. द्वादशांगी इज द एंटायर शास्त्रस. Okay, so with this keval jnana, Tirthankar Paramatma gives 3 words, Upnaiva, Vignaiva and Dhueva, right? And with this Tripadi, Gandhar Bhagwan samasta shastro ki rachna karte hai. Okay, so that is the meaning of first line. Okay, Logasa Ujogre, तो उसके 2 मीनिंग है. एक तो द्रव्य प्रकाश कि पूरे समस्त 14 राजलोक में द्रव्य प्रकाश होता है और समस्त जीव सुख की अनुभूति करते हैं. और दूसरा मीनिंग है कि भाव प्रकाश मतलब वो केवल ज्ञान रूपी ज्ञान गंधर्व भगवंतों को देके गंधर्व भगवंतों द्वादशांकी की रचना करते हैं. ओके, सो दैट इज अ ज्ञान अतिशय. सो फर्स्ट अतिशय इज ज्ञान अतिशय. ओके, फिर उसके बाद है सेकंड है धम्मतित्त यरे. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड धम्मतित्त यरे? मतलब धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले. ओके, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले. सो व्हेन भगवान गेट्स केवल ज्ञान, सो फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज द देवता कम्स एंड वो समोसरण की रचना करते हैं, राइट. एंड आफ्टर द समोसरण की रचना होती है, वो द्वादशांगी प्रदान करते हैं एंड गंधर्व भगवंस वो द्वादशांगी की रचना करते हैं. फिर उसके बाद वो चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं. डज एनीवन नो व्हाट इज चतुर्विध संघ? या It's all the sadhus, sadhvis, and shravaks and shravikas. राइट. सो वो चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, तो उसको बोलते हैं धर्म तीर्थ की स्थापना. ओके, सो धर्म तीर्थ की स्थापना दैट इज बेसिकली 4-fold धर्म, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकास, उसकी स्थापना करते हैं. और दैट धम्मतित्त यरे इज बेसिकली वाचना अतिशय. ओके, वाचना अतिशय वो धर्म तीर्थ की स्थापना कैसे करते हैं? अपने उपदेश देके, राइट. ही बेसिकली गिव्स हिज स्पीच और वाचना, राइट. और उससे समस्त जीव को वो ज्ञान प्रदान करते हैं, तो वो वाचना अतिशय है. डज एनीवन नो कि तीर्थंकर परमात्मा की वाचना के कितने अतिशय है? व्हाट आर द अतिशयस? Talking about the eight atishayas, the other 8.
No, that is 8 Pratiharyas. पर वाचना के कितने अतिशय से? 34. No, that is the puja atishay. पर वाचना के there are 35 atishayas. Okay. So I won't go into all these details, but you can refer to my Tirthankar Charitra class number 9, और उसमें I have described all the 35 Vashna Atisayas. For example, I'll just give you a few examples कि जैसे भगवान की देशना, right, it is heard up till 1 yojan bhumi. So even people sitting at 1 yojan distance, that is around 8 miles or 12 kilometers, they can still listen and hear to Bhagwan's Deshna. So that is one Atishay. फिर उसके बाद भगवान की Deshna is understood by everyone, right? Even the Tiryanch, even the animals, and even the humans. Everyone understands Bhagwan's Deshna. So that is also one of the Vashna Atishayas. फिर उसके बाद भगवान की जो देशना होती है, it's in Malkon's Rag. You might have known Malkon's Rag, right? Jill and Myra, you are learning rags, right? So one of the very popular rag is Malkon's Rag, and it is considered as one of the best rags. Okay, so Malkon's Rag में जो देशना होती है वो भगवान की देशना Malkon's Rag में होती है. So these are some of the atishayas. So there are total 35 atishayas. Okay, so that is the Vashna Atishay. तो उसका मीनिंग है धम्मतित्त यरे. Okay, फिर उसके बाद है जीने. जीने इज अपयागमन अतिशय. जो थर्ड अतिशय है ना, अपयागमन अतिशय, दैट इज जीने. सो व्हाट इज अपयागमन अतिशय? कैन एनीवन टेल मी? डज एनीवन नो व्हाट इज अपयागमन अतिशय? Yeah, it's no calamities within 125 yojan. Right, exactly. So there is absence of 8 things. Okay, so absence of 8 things till 125 yojans. So 125 yojans is close to I think 1500 kilometers. Okay, so जहाँ पे भी भगवान विचरते हैं, wherever the Bhagwan is walking, or whenever Bhagwan is in Samosaran, up till 1500 kilometers, there is no 8 things. So there is no rog, there is no shok, there is no wars, there is no calamities, no earthquakes, floods, famines, there is no upadravs, there is no plagues or diseases. So there is absence of 8 things till 1500 kilometers. और उसको बोलते हैं अपयागमन अतिशय. ओके, सो जो जीने हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड जीने? जीने मतलब राग, द्वेष और कषाय से रहित. ओके, सो जीने मतलब राग से रहित, द्वेष से रहित और कषाय से रहित. और दैट इज वन मीनिंग ऑफ वर्ड जीने. और दूसरा मीनिंग है भय से रहित. भय मतलब फियर. भगवान इज भगवान के पास कोई भी फियर नहीं होता है. There are 7 types of fear, but I won't go into all these details. But there are 7 types of fear. Fear of death, right? Some people have fear of animals. Some people have fear of chor, chor ghar mein aa jaye, something, right? Fear of death, that is very common for everyone. So भगवान को कोई भी fear नहीं होता है. So जीने has 2 meanings. पहला है राग, द्वेष और कषाय से रहित, और दूसरा है भय से रहित. ओके, और फिर उसके बाद है हरियंते कित्तयिसम. ओके, हरियंते कित्तयिसम मतलब मैं हरियंत भगवान का मैं कीर्तन पूजन करूंगा. ओके, हरियंते कित्तयिसम मतलब इट डिस्क्राइब्स द पूजा अतिशय ऑफ तीर्थंकर परमात्मा. And puja atishay matlab all the jeeves of all the sansar, the samasta chaudraj lok, the dev lok, madhya lok and urdhva lok, वो भगवान को पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं. दैट इज द पूजा अतिशय ऑफ तीर्थंकर परमात्मा. और इस पूजा अतिशय में there are 8 pratiharyas and there are 34 atishayas. I won't go into details, but does anyone know what are the 8 pratiharyas? Yeah. Yeah, there is Simhasan, Bhamandal, Chamar, Chhatra, Ashok Vruksh, Divya Dhoni, Dev Dhandavi, and Pushpa Vrushti, right? Vrushti. Okay, so those are the 8 pratiharyas, and there are 34 atishayas. 34 atishayas mein there are 4 atishayas from birth,
Then there are 11 Atishayas because of Karmashaya, and there are 19 Atishayas because of Devtas, right? So that all includes in the Puja Atishay. Okay. Okay, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर you will it might be helpful if you go and listen to my Tirthankar Charitra class, last class. So इसमें I have described all this in details. Okay. Okay, फिर लास्ट सेंटेंस है 24 संपी केवली. 24 संपी केवली मतलब 24 तीर्थंकर. पी जो वर्ड पी है ना, पी मतलब उसका अर्थ है पर. ओके, तो उससे क्या मीनिंग है कि 24 और अनंत केवली. ओके, सो नॉट जस्ट 24. सो पी का अर्थ है ऑल द तीर्थंकर परमात्मा ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ओके, 24 संपी केवली. सो जो पी शब्द है उससे उसका अर्थ है पर, मतलब और. ओके, 24 और सभी तीर्थंकर परमात्मा, ऐसा अर्थ होता है. So let's briefly revise the meaning of first gatha. Logasa ujogre, that is a Gnyan Atishay. That means wo samasta chaud rajlok ko dravya prakash, there is a physical light. और इससे समस्त 14 राजलोक के समस्त जीव वो सुख और आनंद की अनुभूति करते हैं. और भाव प्रकाश मतलब वो केवल ज्ञान रूपी ज्ञान गणधन भगवंतों को देके गणधन भगवंत समस्त शास्त्रों की रचना करते हैं. ओके, फिर उसके बाद है धम्मतित्तयरे. धम्मतित्तयरे मतलब धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले. उसमें देयर इज अ वाचना अतिशय, और उसमें भगवान के 35 गुण्स ऑफ भगवान वाणी, भगवान देशना. देन जीने मतलब अपायागमन अतिशय, मतलब 125 योजन भूमि तक देर आर एब्सेंस ऑफ 8 थिंग्स, रोग शोक आदि. एंड जीने का जो लिटरल मीनिंग है वो राग द्वेष कषाय और भय से रहित. ओके, फिर हरियंत कित्तईसम मतलब पूजा अतिशय, कि भगवान समस्त 14 राजलोक में सभी जीवों से पूजनीय है. दैट इज अ पूजा अतिशय. और उसमें 8 प्रतिहार्य एंड 34 अतिशय आते हैं. और 24 अंपी केवली मतलब मैं ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ या कीर्तन करता हूँ. और नॉट जस्ट 24 बट ऑल द अनंत तीर्थंकर परमात्मा को मैं वंदन और पूजन करता हूँ. ओके, so that is the meaning of first paragraph. Does anyone have any questions on the first paragraph? I know it's little difficult. Loga Sutra is not very straightforward. Okay, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट तीन गाथा है, it basically says the names of all the 24 तीर्थंकर परमात्मा. ओके, सो उसब मचियम च वंदे मतलब ऋषभ देव, अजितनाथ, संभव, अभिनंदन. सो इट्स ऑल द नेम्स ऑफ ऑल द 24 तीर्थंकर परमात्मा. तो वंदे, जहाँ पे वंदे आते हैं मतलब यू आर डूइंग नमस्कार, राइट. वंदन मतलब मन वचन काया तीनों से नमस्कार, उसका मीनिंग है वंदन, राइट. So you are doing vandan by your kaya, by your vachan, and by your mind as well. Okay, तो उसका तो इन नेक्स्ट 3 गाथा हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं. भगवान का नाम लेके हम भगवान को वंदन करते हैं, उसका मतलब है नाम कीर्तन. ओके, फिर उसके बाद I won't go into lots of details, but I have given the meaning of each name. Okay, so अगर तुमको अगर टाइम मिले you can refer this PowerPoint. और ऋषभ देव भगवान का नाम का मीनिंग क्या है, अजितनाथ भगवान का नाम का मीनिंग क्या है और क्यों रखा गया है, you should know all that. Okay, फिर उसके बाद है 5th गाथा. एवं माए अभित्वा व्यूय रय मल्ला पहिना जरमणा. ओके, एवं माए अभित्वा मतलब इन दिस वे मैंने भगवान की स्तवना की है. एवं माए अभित्वा मतलब मैं इस प्रकार से भगवान की स्तवना करता हूँ. तो वो भगवान कैसे है, तो अभी उनका भगवान का गुणों का वर्णन किया है कि पहला लिखा है व्यूय रय मल्ला. ओके, व्यूय रय मल्ला मतलब फ्री ऑफ रज एंड मल. ओके, व्यूय रय मल्ला मतलब रय मतलब रज और मल मतलब सो देर आर 2 types of कर्मस. ओके, देर इज
एक कर्म है इरियापतिक कर्म बोलते हैं और दूसरा कर्म वो सांप्रायिक कर्म बोलते हैं। तो जो कर्म कषाय की मंदता से, मतलब विथ वेरी लेस राग एंड द्वेष से जो जो कर्म लगते हैं उसको इरियापतिक कर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट योग से, ओके, जैसे सिर्फ चलने से, ओके, जो ऐसे एकदम मंद कषाय से जो कर्म लगते हैं उसको इरियापतिक कर्म कहते हैं। और जो कर्म कषाय की तीव्रता से लगते हैं उसको सांप्रायिक कर्म कहते हैं। ओके, सो रज मतलब इरियापतिक कर्म और मल मतलब सांप्रायिक कर्म। ओके, सो व्यू या रह मल्ला मतलब जिसने दोनों टाइप के कर्म को नष्ट कर दिया है। ओके, जिसने इरियापतिक कर्म को भी नष्ट कर दिया है और सांप्रायिक कर्म को भी नष्ट कर दिया है, तो उसका अर्थ है व्यू या रह मल्ला। फिर उसके बाद है पहिना जन्म मरना। पहिना जन्म मरना मतलब जिसने जरा और मरण मतलब जरा और मरण मतलब जन्म और मृत्यु दोनों को जीत लिया है। तो भगवान कैसे है? पहले तो जिसने सभी कर्म को नष्ट कर दिया है और जिसने जन्म और मरण को जीत लिया है। भगवान को अभी जन्म और मरण होने नहीं वाले। सो वो दो गुणों की यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि मैं ऐसे भगवान को मैं स्तुति कर रहा हूँ जिसने सभी कर्म को नष्ट कर दिए हैं और जिसने जन्म और मरण को भी जिसने क्षय कर दिया हो। 24 संपी जिनावरा। ओके, तो ऐसे 24 तीर्थंकर परमात्मा, जिनावरा मतलब जो जीनों में उत्तम है। ओके, देर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर देर इज चौथ पूर्वी जीन, जिसके पास चौथ पूर्व का नॉलेज है उसको चौथ पूर्वी जीन बोलते हैं। जिसके पास अवधि ज्ञान है उसको अवधि ज्ञानी जीन बोलते हैं। तो ऐसे जो सभी जीन में जो उत्तम है उसको जीनोमरा बोलते हैं। ओके, सो ऐसे 24, और यहाँ पे भी पी आता है, पी मतलब अनंत तीर्थंकर परमात्मा। सो 24 और अनंत तीर्थंकर परमात्मा जो सभी जीन में उत्तम है। तित्तयरा में पसियंतु। ओके, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा मुझ पे प्रसन्न हो। ओके, तित्तयरा में पसियंतु मतलब गिव मी ब्लेसिंग्स। ओके, सो हम तीर्थंकर परमात्मा से क्या मांग रहे हैं कि जो भी तीर्थंकर परमात्मा है जिसने सभी कर्म को क्षय किया हो, जिसने जन्म जरा मृत्यु को जीत लिया हो, ऐसे 24 और अनंत तीर्थंकर परमात्मा मुझ पे प्रसन्न हो। मुझ पे कृपा करो, मुझ पे अनुग्रह करो, या मुझ पे प्रसन्न हो। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ तित्तयरा में पसियंतु। ओके, डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? आई नो थोड़ा मुश्किल है लोगों के लिए ये लोग सूत्र, पर ओके, फिर उसके बाद है सिक्स्थ पैराग्राफ। कित्तीय वंदीय मैया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोई लाभम समायवरम उत्तमम दिंतु। ओके, कित्तीय वंदीय मैया। सो कीर्तन, वंदन और पूजन। ओके, तीन टाइप्स के पूजन होते हैं या नमस्कार होते हैं। एक तो है भगवान का कीर्तन करना, कीर्तन मतलब स्तुति स्तवन आदि करना, उसको कीर्तन बोलते हैं। वंदन मतलब तुम जैसे नमस्कार कर रहे हो, मन से तुम भाव से नमस्कार कर रहे हो। और मैया मतलब पूजन, जैसे तुम अष्टप्रकारी पूजा कर रहे हो उसको द्रव्य से पूजा बोलते हैं। सो तीन टाइप के नमस्कार होते हैं, कीर्तन, वंदन और पूजन। तो किसका? जे लोगस उत्तमा सिद्धा, ये लोक में जो भी उत्तम सिद्ध है। ओके, जो सिद्धों में भी जो उत्तम है, जो तीर्थंकर परमात्मा है वो सभी सिद्धों में भी उत्तम सिद्ध है। देर आर 15 टाइप्स ऑफ सिद्ध। हम लोग इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, पर देर आर 15 टाइप्स ऑफ सिद्ध। देर आर जीन सिद्ध, अजीन सिद्ध, तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध। सो फॉर एग्जाम्पल जो तीर्थंकर परमात्मा है जैसे महावीर स्वामी, वो जिन सिद्ध है। ओके, वो जिनेश्वर होके वो सिद्ध होते हैं। फिर उसके बाद जो गौतम स्वामी है वो अजीन सिद्ध है, वो गणधर भगवान होके वो मोक्ष में जाते हैं, उसको अजीन सिद्ध कहते हैं। सो देर आर टोटल 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिद्ध, और उसमें से जो उत्तम सिद्ध है वो तीर्थंकर परमात्मा है, उसको जिन सिद्ध बोलते हैं। ओके, सो
कित्तीय वंदीय मैया मतलब मैं कीर्तन करता हूँ, वंदन करता हूँ, पूजन करता हूँ, किसका? तो जो भी समस्त राजलोक में जो भी उत्तम सिद्ध है उसका मैं कीर्तन, वंदन और पूजन करता हूँ। मतलब मैं हरिहंत परमात्मा का मैं कीर्तन, वंदन और पूजन करता हूँ। और इसका मेरे को फल क्या मिलेगा अभी दिखा रहे हैं। ओके, कि व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कीर्तन, वंदन एंड पूजन। तो 3 टाइप के नमस्कार का 3 टाइप का फल दिखाया गया है। तो पहला है आरुग्य भूहि लाभम। ओके, आरुग्य भूहि लाभम और समाई वरम उत्तमम दिंतु। सो हम तीर्थंकर परमात्मा से वी आर आस्किंग फॉर 3 थिंग्स। पहला, वी आर आस्किंग फॉर आरोग्य भोहि लाभम, मतलब हमको द्रव्य और भाव आरोग्य की प्राप्ति हो। द्रव्य आरोग्य मतलब फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ओके, सो वी आर फर्स्ट थिंग वी आर आस्किंग तीर्थंकर परमात्मा कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, राइट, मेरी फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। और दूसरा है भाव आरोग्य। भाव आरोग्य मतलब फ्री ऑफ ऑल द दोष। यू नो देयर आर 18 टाइप्स ऑफ दोष, पर बेसिकली फ्री ऑफ ऑल द दोष मतलब फ्री ऑफ राग, द्वेष, फिर अज्ञान, अरति, यू नो देयर आर 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ दोष। सो आरोग्य भोहिलाभम मतलब वी आर आस्किंग फॉर 2 थिंग्स। एक तो है द्रव्य आरोग्य मतलब फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और दूसरा है भाव आरोग्य। ओके, उसके बाद वी आर आस्किंग सेकंड थिंग इज बोहि लाभम मतलब बोधि की प्राप्ति हो। बोधि मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। Does anyone know what is Samyak Darshan? You can right faith. right faith। तो बोधि की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। और लास्ट है समाई वरम उत्तमम दिंतु मतलब समाधि मरण की प्राप्ति हो। Does anyone know what is समाधि मरण? Okay, there are 2 types of maran, you know, एक है बाल मरण और दूसरा समाधि मरण। ओके, सो व्हेन यू डाई, राइट, अगर तुम्हारे भाव खराब है, तुम्हारे पास आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है या अशुभ लेशिया है, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया, तो उसको बाल मरण कहते हैं, उससे दुर्गति होती है। और समाधि मरण मतलब तुम्हारा शुभ ध्यान है, तुम्हारा शुक्ल ध्यान है या शुभ लेशिया है, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया, उसमें जो मरण होता है उसको समाधि मरण बोलते हैं। ओके, सो वी आर आस्किंग फॉर 3 थिंग्स। एक तो है द्रव्य और भाव आरोग्य, दूसरा है सम्यक दर्शन की प्राप्ति, एंड थर्ड इज हम समाधि मरण। ओके, सो ये लोकगत सूत्र में वी आर आस्किंग फॉर 3 थिंग्स। और उसके बाद है लास्ट पैराग्राफ, चंदेसु निमलयरा आइचेसु अयम पय सयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदि संतु। ओके, तो यहाँ पे अगेन भगवान की विशेषण बताए कि भगवान कैसे है। तो पहला है चंदेसु निमल रहरा मतलब चंद्र से भी अधिक निर्मल है। ओके, भगवान को चंद्र के साथ कंपेयर किया गया है। तो पहला है भगवान चंद्र से भी अधिक निर्मल है। निर्मल मतलब क्या? जिसने कर्म मल को धो दिया हो उसको निर्मल बोलते हैं। तो पहला है भगवान चंद्र से भी अधिक निर्मल है, दैट इज चंदेसु निर्मल एरा। फिर उसके बाद आइचेसु अयम पया सहरा मतलब सूर्य से भी अधिक तेजस्वी। भगवान का जो केवल ज्ञान है वो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। ओके, फिर उसके बाद है सागर वर गंभीरा मतलब सागर से भी अधिक गंभीर। ओके, सागर मतलब ओशन। भगवान कैसे है कि ओशन से भी ज्यादा गंभीर। गंभीर मतलब क्या? डज एनीवन नो द मीनिंग ऑफ गंभीर? Deep. राइट, गंभीर, डीप, पर उसका जो अर्थ है, अर्थ क्या है शास्त्र में कि भगवान जब भगवान पे जो जैसे परिसह आते, उपसर्ग आते हैं, राइट, उसको वो सहन कर सकते हैं, उनकी इतनी सहन शक्ति होती है, सो उसको गंभीर कहते हैं। या भगवान, और दूसरा मीनिंग है भगवान की जो आत्मा की जो आनंद घन अवस्था है उसको गंभीर कहते हैं। ओके, सो गंभीर के 2 मीनिंग है, एक तो आनंद घन अवस्था और दूसरा है परिसर उपसर्ग को की सहन करने की शक्ति। ओके, सो वो सागर या ओशन से भी अधिक गंभीर। ओके, एंड लास्ट है सिद्धा सिद्धि ममदि संतु मतलब ऐसे सिद्ध भगवंत मुझे सिद्धि दो मतलब मुझे मोक्ष प्रदान करो। ओके, सो दैट इज सिद्धा सिद्धि ममदि संतु। सो ऐसे सिद्ध भगवंत मुझे सिद्धि दो मतलब मोक्ष दो। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ लोकगत सूत्र। तो आई नो इट इज
वेरी डिफिकल्ट, मतलब ये लोकगत सूत्र मैंने बहुत ही सिंपल वे से समझाया, पर तुम एक बार मेरा तीर्थंकर का क्लास सुन लेना, देन तुमको थोड़ा इजी होगा ये सूत्र समझने के लिए। और ये रिकॉर्डिंग भी, यू विल हैव टू लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग अगेन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि इसका मीनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। लोकगत सूत्र का मीनिंग इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके, देयर इज अ डीपर मीनिंग विद इन द लोकगत सूत्र। So any questions on Loga Sutra? Okay, no questions. Okay, then yeah, we can end the class. Yeah, अगर कोई questions हो तो फिर पूछना, पर yeah, let's count Nokar mantra. Saina, do you want to count Nokar mantra? Yes. Yeah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayaryanam. Namo Uvajhayanam. Namo Loe Sabba Sahunam. Eso Pancha Namo Karo. Sabba Bhava Panashanam. Mangalanam Shri Savvaisim. Padanu Avai Mangalam. Okay, thank you everyone. Thank you, Chaitanya. Thank you.